our university. Now, we will formally begin the session of the day. And I want to formally introduce our resource person of the day, Dr. Amit Gautam. We welcome you, sir. On the behalf of University School of Education, I heartily welcome you to our faculty development program. So, Dr. Amit Gautam is presently working in Dayalbagh Educational Institute, that is in Agra. He is having more than 10 years experience of teaching at both undergraduate and postgraduate level. His research areas includes ICT in education, research methodology, constructivist approach, and various other dimensions of the teacher education. He has completed many research projects funded by ICSSR and mentored research project by Faculty of Education, Banaras Hindu University. He is also in charge of project Paramarsh, that is under the UGC scheme for mentoring NAC accreditation, aspirant institutions to promote quality assurance in higher education. At present, Dr. Amit is also coordinator of IQAC in his university. We welcome you, sir. Now I would like to invite you for the session. Thank you, ma'am. Over to you, sir. Thank you, Anjali, ma'am. Before I enter before you, that Anjali, I would like to have Professor Dhananjay Joshi, the Dean of University School of Education. He has also joined us. Welcome you, sir. I could not resist myself to welcome our very dear friend, Dr. Amit Gautam, who is not a friend, he's just a younger brother for me. Very nice human being and a very able academician and a very efficient technocrat and software developer. He has achieved so many things in very young age of, in this age of 30 or 35 years. He's doing so many things simultaneously. He is the IQAC in charge of his university. He is also attached with various universities at various capacities. So today we will be benefited to my university and other participants of this FDP will take benefit of your presence, Amit. And I believe that your expertise will help them to be more techno savvy because this COVID and this pandemic has taught us to be more and more online rather than be offline. So you will help us, and I believe that all the sessions which have been taking place in our university since first day, and today is the last day, and tomorrow we'll have the valedictory. So in valedictory, I just take the opportunity of just 1 minute for sharing. Professor S. Senapati, who is currently the director of NCERT, is the highest authority in research and school education. Professor Senapati is a well-known name. He is the chief guest along with the former director of FMS Delhi University, ML Singla, and Dr. ML Mehru, who is from Center of Media Studies of MOOC in charge of All India Government of India. He is participating with this in this valedictory program. So we'll have the program at 2 o'clock tomorrow. So I request all my dear friends, those are attending with this workshop, to be with us at 2 o'clock, because at 4 o'clock we will have our session because we have little preponed due to the availability of our chief guest. We'll have first our valedictory at 2 p.m. Then we'll have tomorrow's session at 4 o'clock. So with this little announcement, I'll take the permission to hand over to Dr. Amit Gautam to kindly present his theme of the day. Over to you, Dr. Amit. Thank you again for Thank you, sir. Thank you, and thank you for your wonderful words. And it is a great honor for me also. And good afternoon, everyone. And before starting this session, and I'm very fortunate to express my sincere, heartfelt thanks to Professor Dhananjay Joshi and Dr. Anjali Shokin, and also Dr. Amit Ahuja for giving me the wonderful opportunity to share my view about the various application of ICT in such kind of panic situation. And once again, thanks to all, sir. Now I am going to start my presentation. Basically, it is not just a presentation, it is just I'm sharing my view about the various ICT based education tools, which is the requirement of present scenario.
So before starting this online teaching and learning portion, I want to share something with you. Basically, when we talk about some online application or online tool, that is not a necessary for us कि जो सब कर रहे हैं हम उसके पीछे ही चलें. The panic situations में हमारे लिए ये आवश्यक है कि whatever we have, what kind of resources we have, what kind of instrument we have, हम उन्हीं के द्वारा किस तरह से एक अच्छी टीचिंग और एक कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू काम कर सकें. ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस में जब हम बात करते हैं तो हमारे साथ जितनी बाउंड्रीज में बेनिफिट हैं उतने ही कहीं ना कहीं नेगेटिविटी सिचुएशंस भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं. बिकॉज जब हम क्लासरूम सिनेरियो की बात करते हैं तो हमारा ऑडियंस के संग एक डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑडियंस के संग होता है और हमें एक डायरेक्ट फीडबैक फॉर्म में मिलता रहता है कि बेसिकली कि हम जो भी क्लासरूम में कर रहे हैं उसका डायरेक्ट फीडबैक हमें मिल रहा है, सो दैट वी विल हैव अ लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट चांसेस और हम नेक्स्ट क्लास में ये मान के चलते हैं कि हम उनको इम्प्रूवमेंट करें. वहां एक कंडीशन और है, क्लासरूम सिचुएशन की कंडीशन और है कि लर्नर चाहे ना चाहे आपको वो सुनता है. 50 मिनट की क्लास में, 60 मिनट की क्लास में वो आपको सुनता है. कई सारी बाउंडेशन है, आपका टीचर का रिगार्ड कह लीजिए, अटेंडेंस बाउंडेशन कह लीजिए, पर आपको सुनता. पर जब हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं, वहां पर जब भी हम इस सिनेरियो की बात करते हैं, जरा सा भी हम ट्रैक से बाहर हुए, कोई भी चीज बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो ऑडियंस के पास बहुत सारे ऑप्शन है. Like this, the audience can off their mic, their camera on the basis of some kind of technical limitations. So this is also a real challenge for us in online teaching and learning applications also. जब हम इन सब सिचुएशन की बात करते हैं, तो here is a big difference. The part is कि basically what we have to understand the concept. What is the difference between the online and face-to-face classroom situations? पहले हमें ये जानना पड़ेगा, इस पर हमें बात करना पड़ेगा. और दूसरी कि what are the difference between the online, offline and online course design. ये दो चीजों को लेके हमें यहाँ काम करना पड़ेगा. जब हम ऑनलाइन सिचुएशंस की बात करते हैं तो ऑनलाइन के नाम पर इस कोविड-19 सिचुएशन में बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस इजीली अवेलेबल हैं, फ्री एक्सेसिबल है. पर सवाल ये उठता है कि वो फ्री एक्सेसिबल को हम इंटरेस्टिंग मोड में प्रेजेंट कैसे करें. जब हम ऑनलाइन सिचुएशन की बात करते हैं तो इट इज ओपन टू ऑल. जो चीज हमारे लिए वही सारे यूजर के लिए ओपन टू ऑल है. तो ये सिचुएशन यहाँ आती है. लेकिन एज अ टीचर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सी एप्लीकेशन हमारे लिए क्लासरूम सिनेरियो में, क्लासरूम सिचुएशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है. किसका इम्पैक्ट ज्यादा है, किस एप्लीकेशन के थ्रू हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं. जब हम क्लासरूम सिचुएशंस में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी लेके चलना पड़ता है. ठीक उसी तरह ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी क्लास में, आपकी क्लासरूम के अंदर कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी आईसीटी में योग्यता, आईसीटी में क्षमताएं अलग अलग हैं. वो सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स ना होकर वो भी यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए. अदरवाइज क्या है कि बच्चे का जो अटेंशन हम कैप्चर करना चाहते हैं वो अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि जितना टाइम वो उन समस्याओं का सामना करने में लगाएगा वो उसको मेन जो लर्निंग जोन है उससे अलग लेके जाएगा. तो इसीलिए हमारे लिए आवश्यक है कि जब हम क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग की बात करें तो हमारे लिए ये साथ ही साथ ये आवश्यक हो रहा है कि हम ये जानें कि क्लासरूम हम सिनेरियो में बात करते हैं why to teach, when to teach, whom to teach and what to teach की बात करते हैं. जब ऑनलाइन सिचुएशन में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं why to online teach, whom to online teach, what to online teach and when to online teach. ये चारों पर्सपेक्टिव यहाँ भी काम करते हैं. पहली बात है कि हम ऑनलाइन टीचिंग कर क्यों रहे हैं. ये हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ऑनलाइन टीचिंग कर क्यों रहे हैं, whether it is an essential part for our syllabus, और हम इस तरह की सिचुएशन का सामना करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग. साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हमारे लर्नर कौन है. हमारे पास जो लर्नर है उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, और
थर्ड चीज है व्हाट टू टीच, क्या कंटेंट हमें डिलीवर्ड करना है, क्या कंटेंट उनके सामने प्रस्तुत करना है, हमें इस बात पर फोकस करने की आवश्यकता पड़ती है। और इस पर लर्निंग पर आता है व्हेन टू टीच। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें बेसिकली फ्लेक्सिबल जोन में है, बट इट इज ऑल्सो असेंशियल फॉर अस। Here is we also remember the one point also that is known as the personalized learning. Here I have to just explain Bloom's thought. Bloom said it make no sense to expect all the students to take same amount of time to achieve the same objective. That is also applicable for this online situations also. Basically, when we talk about the personalized learning, then we have to focus on these points also. Today, we have some tools I'm going to explain some kind of platform to you. Through this platform, we can create the online teaching and learning situation like the classroom scenario. We can discuss everything. We can share everything. We can make any kind of exchange of thought process. We can do anything in this online learning classroom platform. So here I also just want to share one complexity also. Basically, here we have the absence of the physical medium. So if we talk about this part, then we have to be more careful about to deliver the various kind of lecture, various kind of things in the online teaching and learning mode. Basically, the first thing is we have lots of platform like the first thing हमारे पास गूगल क्लासरूम है, एडमोडो एप्लीकेशंस हैं, बिग ब्लू बटन है, इजेड टॉक है, क्लासरूम फ्लो है. These application or software known as the virtual classroom software. These are the freely available softwares. Like Google Classroom is freely available software, Edmodo is freely available software, and these software is very helpful to the learner to create the teaching and learning virtual environment. तो हम इन सब की आज क्लासरूम में बात करेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर मैं आपके सामने हूं उस पर पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा, और ये कोशिश करूंगा कि इन जो गिवन हमारे पास टाइम है उसमें कम से कम 2 एप्लीकेशन आपके साथ प्रस्तुत करूं, आपके साथ साझा करूं, क्योंकि जो एप्लीकेशंस आपके साथ पसंद आती है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. बिकॉज आईसीटी डजंट मीन कि हम फोर्सफुली किसी को कहें कि आप ये एप्लीकेशन यूटिलाइज करिए. इट इज अप टू यू कि आपको कौन सी एप्लीकेशन यूजर फ्रेंड लगती है, किसको आप इजीली काम कर सकते हैं. इट इज अप टू यू. सो ये बाउंड्री नहीं है कि आपको किसी ने सजेस्ट किया आपको एप्लीकेशन यूटिलाइज करनी है. इट इज ऑल्सो अ फ्लेक्सिबल पार्ट फॉर यू कि जो एप्लीकेशंस आपको पसंद आती है, जिस एप्लीकेशन को लेके बात करते हैं उस एप्लीकेशन को आप इजीली देख सकते हैं. एक चीज मैं यहाँ और थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि कंटिन्यूशन में फिर हम दूसरे सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे. तो इस कंटिन्यूशन में मैं बात करना चाहता हूँ कि क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग भी को भी इफेक्टिव बनाना आवश्यक है. हो क्या रहा है आज के टाइम में कि छोटे छोटे वीडियोस बना के या बच्चों को रिसोर्सेज के नाम पर ऑनलाइन टीचिंग आप करा देते हैं कि आपको कहीं रिसोर्सेज दे दिया, वो ऑनलाइन टीचिंग या वर्चुअल क्लासरूम का नाम दे. तो वर्चुअल क्लासरूम ये नहीं है. रिसोर्सेज तो इजीली बच्चे के सामने ऑलरेडी अवेलेबल है. नाउ इट अप टू यू कि आप वर्चुअल क्लासरूम में उनको कैसे ले जाएं, वर्चुअल क्लासरूम में कैसे काम कराने की कोशिश करें. टुडे basically firstly I want to discuss with you the Google Classroom, because in this kind of situation Google Classroom can create the easily environment of the virtual classroom. So let's start with this topic. And here I'm just sharing my
जब हम गूगल क्लासरूम की बात करते हैं तो गूगल क्लासरूम किसी भी इजीली ओपन सोर्स पर गूगल पर आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको इजीली गूगल क्लासरूम मिल जाएगा। और आप जब और directly you can explore the Google Classroom from this part also. Here is all the application is available in this part. So directly you can find all the my screen is visible to all. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So here you find this kind of Google Classroom. Basically, when we talk about the Google Classroom, the Google Classroom is available to schools teacher with a Google app for education domain. And Google Classroom is a way to get all of your student in a one place and allow you to easily assign work and for the student to turn it in. Google Classroom make teaching more productive and meaningful by streamlining assignments, boosting collaboration, and fostering communications. Educator can create the classroom, distribute assignment, send the feedback, and see everything in a one place. And classroom are seamlessly integrated with the Google tools like the Google Docs, Google Sheet, Google Drive, etc. easily. So that is the benefit of the Google Classroom. एक प्लेटफॉर्म पर ही हमें इंटीग्रेशन फॉर्म में सारी एप्लीकेशन अवेलेबल मिल गई। गूगल को हम इसलिए भी और थोड़ा सा हम परिचित हैं क्योंकि गूगल इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस। गूगल की जितनी एप्लीकेशन है वो सब यूजर फ्रेंडली है। तो हम इस पर बात करें। Before starting this part, I want to share some basically feature of the Google Classroom. Basically, we all know that is a free available software, and it is a cloud-based software. So need not to worry about the saving of data, downloading of data, protection of the data. So आपको इसके लिए कोई भी घबराने या कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। Everything is available, directly available in your drive also. It is a cloud-based system. जब हम इसकी बात करते हैं तो Google Classroom is designed for collaboratively with the teacher to help them save the time, keep classes organized, and improve the communication with the students. The main part is it is also helpful to save the teacher's time, because when we talk about the collaboration, when we talk about the integration, everything is available on a single platform. तो आपको कहीं ना कहीं कई प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेटेड कर उस पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं कि कई सारी एप्लीकेशन यूटिलाइज करते हैं, कहीं से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, दूसरी फाइल को कहीं और शेयर कर रहे हैं, वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं, फिर शेयर कर रहे हैं। तो it basically create a lots of complexity for us. Basically ऑनलाइन का फायदा ये है, कम समय में कम एफर्ट्स के संग हम अपनी बातों को लर्नर तक कैसे प्रेजेंट करें। अगर लर्नर तक आप प्रेजेंट करने में सक्षम नहीं हो पा तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो ऑनलाइन टीचिंग है वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाएगी और आपका जो इंटरेस्ट है करने का वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता जाएगा। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए गूगल क्लासरूम में सारी चीजों को, सारी एप्लीकेशंस को जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन डेली क्लासरूम में जरूरत पड़ती है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। इन दिस गूगल क्लासरूम वी कैन इजीली ऐड द स्टूडेंट, or student can we can add the student, or student can join the classroom with a code. For this example, basically here is a plus sign is available. When we click on the plus sign, then the option to reflect, create or join the classroom. When you click on this, you will find two options: join classroom or create the classroom. When you are working in a capacity of teacher, you can create the classroom. और अगर आपके छात्र हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनके संग एक कोड शेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली उस कोड के थ्रू वो आपकी क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज अभी शेयर करेंगे, किस तरह से कोड को जनरेट करते हैं, क्या कोड को बच्चों के संग शेयर कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ क्लासरूम. When we click on this part, then the Google Classroom will ask some basic things to us. What is the name of the classroom?
जो आपकी क्लासरूम है आप वो नाम रख सकते हैं, लाइक यू आर टेकिंग द बीएड क्लासरूम, यू आर टेकिंग द पेडागोगी ऑफ साइंसेस, पेडागोगी ऑफ कॉमर्स, आईसीटी क्लासरूम, आप उसको क्लासरूम के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं. So today I am with you in a FDP classroom. So we will put the name FDP, IP University. This is the mandatory part. Or section, it's up to you. If you have more section, then you put the section A, B, C, D, or according to room numbers you can put. But this is the mandatory class name. आपको यहाँ mention करना पड़ेगा. जब आप क्लासरूम मेंशन कर देते हैं, देन यू कैन क्रिएट द क्लासरूम. ये आपको गूगल क्लासरूम क्रिएट हो गए. सभी पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट है, आई एम गोइंग टू शेयर दिस क्लास कोड विद यू. Okay, so just open the Google Classroom and just enter this class code, so you can join my classroom, and so for a better understanding you will easily find all the features of the of my classroom also. So it is request to all the participants, please join the Google Classroom with this class code. This is auto generated क्लास कोड. और अगर आपको चाहिए कि क्लास कोड को आपको रीजनरेट करना है तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है. तो पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल में इस कोड को यूज करते हुए गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए. मैं इसके साथ आगे के कुछ फीचर आपसे शेयर करना चाह रहा हूं. तब तक आप क्लासरूम को या तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या लैपटॉप पर आप काम कर रहे हैं तो पहले दूसरी विंडो पर आप ज्वाइन कर सकते हैं. सर ओके, आप लोग ज्वाइन करिए, मैं तब तक इस पर कुछ और आपसे बातें कर लेता हूँ. जब हम बात करते हैं, पहली चीज ये हो गई कि आप कोई भी कोड के थ्रू स्टूडेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकता है, थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन, थ्रू द लैपटॉप, थ्रू डेस्कटॉप, किसी भी मोड के थ्रू ये क्लासरूम बच्चा ज्वाइन कर सकता है. जब क्लासरूम की ज्वाइन की बात होती है, पर ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है हमें कि ये जो क्लासरूम कोड है वो क्लासरूम जिस ग्रुप को आप डील करते हैं बस उसी के अंदर शेयर होना चाहिए. बिकॉज आपकी क्लासरूम में 60 बच्चे हैं, अगर ये ग्रुप ओपन टू ऑल है देन देयर विल बी नो इशू. अगर ये ग्रुप एक पर्टिकुलर क्लास के लिए है, आपको इसके थ्रू इवेल्युएशन करना है, इसके थ्रू असाइनमेंट चेक करने हैं, तो ये ग्रुप या क्लास कोड एक पर्टिकुलर ग्रुप तक ही आपका शेयर होना चाहिए. आप इसके थ्रू डायरेक्ट बच्चों को जोड़ सकते हैं. डायरेक्टली क्लासरूम में बच्चों को जोड़ने के लिए आपके पास पीपल वाला ऑप्शन है. वी हैव 4 ऑप्शन हियर: स्ट्रीम, क्लासरूम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रिड. जब क्लासरूम में बच्चों को जोड़ने की बात चल रही है तो मैं वहीं आपको ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए आपके सारे पार्टिसिपेंट इस क्लासरूम में यहाँ शो होने लगे. आपको दिख रहा होगा तुलिका, रेखा, प्रियंका, सोनल मैडम, प्रेमचंद, ये कई लोग ऐसे जो इस क्लासरूम इजीली ज्वाइन कर. हमें ये देखना पड़ेगा कि इस क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई भी टेक्निकल नॉलेज, कोई किसी तरह की चीजों की एक्स्ट्रा की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया. अगर किसी भी तरह से कोई बच्चा क्लासरूम को ज्वाइन करने में सक्षम नहीं है तो वी हैव अनदर ऑप्शन. इन स्टूडेंट सेक्शन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस पार्ट एंड डायरेक्टली वी कैन इनवाइट एनी स्टूडेंट्स थ्रू द ईमेल. सो अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप कोई भी ईमेल आईडी टाइप करिए
और यू विल फाइंड योर लिस्ट और आपको टाइप करिए और उस बच्चे के पास डायरेक्ट इन्विटेशन गूगल क्लासरूम का पहुंच जाएगा थ्रू द ईमेल. He has to accept your invitation only. Okay. Another feature of the Google Classroom is कि in the teacher portion, आप ऊपर ये टीचर वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो यहां पर आप 20 टीचर्स, टीचर और को टीचर आप क्रिएट कर सकते हैं. मान लीजिए आप पेडागोगी ऑफ साइंस की क्लास 2 टीचर्स मिलकर ले रहे हैं, तो यू नीड नॉट टू क्रिएट दी सेपरेट क्लासरूम फॉर पेडागोगी ऑफ साइंसेस. आप सिंगल क्लासरूम के अंदर 2 टीचर उन चीजों को शेयर कर सकते हैं. आप टीचर को यहाँ अथॉरिटी दे सकते हैं एंड टाइप अ नेम और द ईमेल ऑफ द टीचर एंड डायरेक्टली यू कैन इनवाइट एनी योर कोलीग्स लाइक अ टीचर ऑफ द क्लासरूम. यहाँ पर जो टीचर आप ऐड कर रहे हैं उसके पास सारी अथॉरिटी होंगी एक्सेप्ट टू डिलीट द क्लासरूम, बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं, आपने क्लास क्रिएट करी है. तो यू कैन क्रिएट द क्लास, यू कैन डिलीट द क्लासरूम ऑल्सो, बट जिस दूसरे टीचर को आप अपने साथ जोड़ रहे हैं ही डोंट हैव दिस काइंड ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो. बाकी वो सारे काम कर सकता है, असाइनमेंट क्रिएट कर सकता है, वो कोई भी चैट शुरू कर सकता है, इवेल्युएशन कर सकता है, पर क्लासरूम डिलीट नहीं कर सकते. ये एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ पर अवेलेबल. तो हमने यहाँ कोई भी क्लास को ज्वाइन करा लिया. जब हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए तो आप उन स्टूडेंट्स के साथ किसी भी तरह की बात कर सकते हैं. नाउ है वी हैव द वर्चुअल क्लासरूम. एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट हमारे पास अवेलेबल है. ये आप जो देख रहे होंगे जहाँ मैंने FD यूनिवर्सिटी लिखा है, यहाँ पर आप अपनी वॉल को भी कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एक ICT के पास है कि हम चीजों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव कैसे बनाएं. वी हैव थीम गैलरी, वी हैव जर्नल थीम related to subject also, English and history, we have maths and science, arts, sports, etc. It's up to you. Or you can even upload any kind of picture which is available to you. तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. एक और फीचर मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ. यही आप यहाँ पर मेन हेड आप देख रहे होंगे, मीट लिंक एक अवेलेबल है. You can generate the meet link. ये जो मीट लिंक आपने देखा, ये मीट लिंक अभी इस तरह की जो पैनिक सिचुएशंस उसके साथ गूगल ने गूगल मीट को इसके साथ इंटीग्रेटेड कर दिया. तो क्या आपको 2 अलग अलग एप्लीकेशंस पर यहाँ से डाइवर्ट नहीं होना पड़ा. आपको अपने बच्चों के साथ अपनी क्लास के संग 2 अलग अलग एप्लीकेशंस की जिक्र नहीं करनी. द मेन पार्ट इज यू कैन डायरेक्टली इनवाइट योर स्टूडेंट थ्रू द गूगल मीट ऑल्सो, और आप यहाँ से कोई भी क्लासेस डायरेक्टली. तो क्या है कि यहां से आप क्लासरूम की लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं. अब तक लाइव स्ट्रीमिंग का जो फीचर है गूगल के पास अवेलेबल नहीं था. वी हैव टू चूज 2 डिफरेंट एप्लीकेशन. एक पर तो हम गूगल क्लासरूम से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर रहे हैं. यहाँ पर गूगल ने इस चीज को अलग किया है, और जब बच्चा इस लिंक पर क्लिक करेगा डायरेक्टली, तो आप ये देख रहे होंगे गूगल मीट डायरेक्टली लॉग इन हुआ और गेटिंग रेडी हो रहा है, कैमरा स्टार्ट हो रहा है और बच्चा डायरेक्टली आपकी क्लासरूम को ज्वाइन कर सकता है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कि कई सॉफ्टवेयर्स के, कई पहले सॉफ्टवेयर का इसमें इंटीग्रेशन है. आपको जगह जगह से सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं. तो यू कैन, बिकॉज माई कैमरा इज शेयरिंग ऑन दिस पार्ट, तो वो फेल हो रहा है. इस तरह से बच्चे यहाँ ज्वाइन कर सकते. अब हम जब इस क्लासरूम की बात करें तो यहां पर क्लास पैनल की बात करें, वी हैव 4 ऑप्शन हियर. वन इज द स्ट्रीम्स, वन इज द क्लासरूम लाइक दिस, वन इज द स्ट्रीम्स, वन इज द क्लास वर्क, थर्ड वन इज द पीपल एंड फोर्थ वन इज द ग्रेड्स. जब हम पहले की बात करते हैं तो इट इज जस्ट लाइक अ फेसबुक वॉल. यस सर, ये जो सर क्लास कोड कैसे जनरेट किया था हमने सर, वो प्लीज एक बार बता दीजिए वापस. When you generate any class, you can create any class. Yes sir. It will be auto generated. Okay, first time it will be auto generated. अगर आपको लगता है कि ये क्लास कोड
गलत बच्चों के संग शेयर हो गया, गलत ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है, तो आप इसको दोबारा कर सकते हैं। आप यहाँ सेटिंग्स में जाके सेटिंग में जाके आप यू कैन फाइंड द क्लास कोड ऑल्सो। द फर्स्ट थिंग क्लास कोड। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर 2 स्मॉल आई हैं, ये बच्चों को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंट्री करने में कभी कभी प्रॉब्लम करता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको या तो कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद डायरेक्टली बच्चों को शेयर कर दीजिए। आप इसको रीसेट कर सकते हैं। अभी तक ये क्लास कोड है, अगर मैं चाहूँ तो इसको रीसेट कर सकता हूँ। रीसेट करेंगे तो दूसरा पासवर्ड हो जाएगा। अभी डबल आई था, अब WHOFIL पासवर्ड, सो दैट इट कैन कंट्रोल द आवर क्लासरूम सिचुएशंस आल्सो। पासवर्ड किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या देना है, तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात कर सकते हैं, आपको लगता है कि मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट अवेलेबल हैं और 60 स्टूडेंट ने आपकी क्लास ज्वाइन कर ली है, to control the environment you can disable this password also, okay? otherwise होगा कि वो पासवर्ड आपका शेयर रहेगा और कभी भी कोई भी क्लासरूम में एंट्री करेगा तो आपका जो ग्रेडिंग आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। तो अगर आप इस बात पर अश्योर करते हैं कि आपकी क्लास के सारे बच्चे आ गए, तो यू कैन डायरेक्टली डिसेबल दिस पासवर्ड। तो ये उसके बाद क्लासरूम में बच्चे एंट्री नहीं कर सकते। अब हम ये कर रहे थे, ओके मैम, अब आपने देखा हुआ एक क्लास कोड यहाँ डिसेबल्ड आ गया। जब बच्चा एंट्री करने की कोशिश करेगा तो उसको आएगा द क्लास कोड इज डिसेबल्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट टू योर टीचर। जिस तरह हम अपनी फेसबुक वॉल पर कोई भी काम पोस्ट करते हैं, यहाँ पर आपके गूगल क्लासरूम पर आपके पास काम है जिसमें आप कह सकते हैं शेयर समथिंग विद योर क्लासरूम। इफ यू क्लिक ऑन दिस यू विल फाइंड दिस ऑप्शन, और ये थ्रू दिस ऑप्शन you can basically share any kind of things with your student. Or the beauty of this software is you can share this single work with your multiple classes. और Google Classroom में कोई भी टीचर कितनी भी क्लास क्रिएट कर सकता है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर कि आपके पास 6 क्लासेस हैं, 7 क्लासेस हैं, 10 क्लासेस हैं, तो वी डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस कि एक टीचर एक सिंगल पोर्टल पे केवल 2 क्लास क्रिएट करे, ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जब आप सिंगल क्लासरूम में कोई भी अपडेट, कोई भी अनाउंसमेंट अपलोड कर रहे हैं या अपलोड करने जा रहे हैं, यू नीड नॉट टू प्रोसीड एनी क्लासरूम ऑल्सो कि आप पहले इस पर क्लासरूम पे करेंगे, दूसरी क्लासरूम पेडागोजी साइंस की है, फिर वहां अनाउंसमेंट करेंगे। वो जो टाइम वेस्टेज सिचुएशन है उसको ये कंट्रोल करता है। आप एक सिंगल क्लिक पर, इफ यू क्लिक ऑन दिस पोर्शन, यू विल फाइंड कि हियर इज द 2 क्लासेस ओनली, FDP IP University and second is the EDM 220 group. You can click on both the classes and the common instruction will be displayed on both the classes student with both class students also. तो ये एक सिचुएशन है, एक कॉमन कमांड पर हम एक कॉमन इंस्ट्रक्शन को कितने भी ग्रुप में सर्कुलेट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर की अच्छी बात है। मान लीजिए अभी मैं केवल FDP IP के साथ कुछ अनाउंसमेंट करता हूँ, and it is also an essential part of this software कि मुझे किस बच्चे के साथ कौन सी बात रखनी है, कौन सी बात शेयर करनी है, वो भी यहाँ आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर टिक और अनटिक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू शेयर योर अनाउंसमेंट विद द ऑल स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू शेयर योर अनाउंसमेंट विद पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो आप यहाँ क्लिक और अनक्लिक कर सकते हैं। जिसको भी आप अनाउंसमेंट शेयर करना चाहते हैं वो लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। Anything you can write here, just explain about the Google Classroom, okay? कुछ भी यहाँ लिखा और आप इसको डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। इस पोस्ट के साथ आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि पोस्ट मुझे कल दोपहर 12 बजे बच्चे के साथ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो आप इस शेड्यूल में जाके अपना टाइमिंग
कर सकते हैं कि व्हाट इज योर शेड्यूल अनाउंसमेंट. इट इज फॉर 16:08 AM. तो यू कैन शेड्यूल दिस अनाउंसमेंट ऑल्सो. उस समय आप दोबारा से अपनी गूगल क्लासरूम खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ऑटोमेटिकली इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन पर्टिकुलर टाइम ओनली. थर्ड ऑप्शन इज वी कैन सेव द ड्राफ्ट. तो हमारे पास 3 ऑप्शन. इमीडिएटली वी कैन पोस्ट द थिंग्स, we can schedule, or we can save the draft for the further communication. After that, you can add any kind of file with the we have 4 options. We have Google Drive, we have Link, we have File, and we have YouTube. और मैं नहीं मानता कि इन चारों के बियॉन्ड क्लासरूम सिचुएशन में कोई और शामिल है. ज्यादा से ज्यादा आप YouTube के लिंक देते हैं बच्चों को रेफरेंस के लिए, कोई मटेरियल शेयर करते हैं गूगल ड्राइव से, या आप प्लेजरिज्म से बचना चाहते हैं तो आप कोई लिंक शेयर कर देते हैं या कोई फाइल. इन चारों चीजों में वो सारी नोट्स कंटेंट की बातें आ जाती है जो आप एक क्लास शेयर करना चाहते हैं. गूगल ड्राइव बेसिकली व्हेन वी जनरेट दिस काइंड ऑफ क्लास, तो आपके पास जो गूगल क्लासरूम, जो गूगल ड्राइव अवेलेबल है, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ फोल्डर ऑफ द गूगल क्लासरूम ऑल्सो. क्योंकि जो बच्चा कोई भी कोड जनरेट करेगा, जो भी काम जनरेट करेगा, वो डायरेक्टली वहां पर सेव होता जाए. आप अगर ऐड करना चाहें आपकी गूगल ड्राइव में कोई भी मटेरियल अवेलेबल है, तो डायरेक्टली आप वहां से शेयर कर सकते हैं. कुछ फाइल्स मेरे पास बच्चों की अवेलेबल हैं, इस तरह की कुछ फाइल्स, नोट्स अवेलेबल हैं, कर सकते हैं. आपके पास कोई फाइल जो आपके ड्राइव में है, सिस्टम में है, वो कर सकते हैं. माई ड्राइव आपकी शेयर हो रही है, ये कुछ फोल्डर्स हैं. इन फोल्डर्स में से अगर आपके पास कोई मटेरियल अवेलेबल, डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. तो ये चीजें हैं कि जहां आप इंडिविजुअली डायरेक्टली अपनी ड्राइव को यहाँ शेयर कर सकते हैं. सेकंड पार्ट इज कि कोई भी लिंक, अगर आपको लगता है कोई बुक, बहुत अच्छी बुक अवेलेबल है पर कई सारे इशू आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली वो लिंक दे दीजिए. यू नीड नॉट टू डाउनलोड द बुक फर्स्ट, एंड you need not to upload the book in your wall also. It will create a lots of copyright issue also. तो आपको इनसे कॉपीराइट इशू बचना है. आप लिंक दे दीजिए कि जब बच्चा पढ़ना है, जब स्टूडेंट को पढ़ना है, तो डायरेक्टली ही विल एक्सप्लोर द लिंक, तो बच्चा सीधे वही वेबसाइट पर पहुंच जाए. नेक्स्ट पार्ट इज you can upload any kind of file which is available in your system, in your desktop, laptop. डायरेक्टली आप कोई भी फाइल यहाँ पर यहाँ अवेलेबल है, उनको आप शेयर कर सकते हैं. तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि बहुत स्मूथ फंक्शनिंग है इसकी, आप यहाँ काम कर सकते हैं. लास्ट ऑप्शन इज ऐड में अगर आप बात जाते हैं तो वी हैव अ यूट्यूब ऑप्शन. यहाँ जो हम बात कर रहे थे गूगल की, यूट्यूब इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद दिस पार्ट. इफ यू वांट टू एक्सप्लोर एनी काइंड ऑफ थिंग्स, मान लीजिए कोविड-19 पर ही हम कोई बात कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो डायरेक्टली यू कैन एक्सप्लोर फ्रॉम द यूट्यूब. आपको बाहर निकल के जाने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज द रेफरेंस मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. तो आप कोई भी मटेरियल यहाँ पर ले सकते हैं. ये सारा कुछ मटेरियल है. जो भी आपको वीडियो लगता है, वीडियो आप देख सकते हैं. वीडियो जो आपको लगता है उस वीडियो पर टिक करिए और यहाँ अपलोड कर सकते हैं. if you do not want to export the video on your YouTube, if you have direct link, तो आप direct link यहाँ post कर सकते हैं. It will be reflected on your posting section also. तो ये ऑप्शन है. और हर सिंगल क्लिक पर, हर सिंगल अनाउंसमेंट पर बच्चों के पास एक नोटिफिकेशन जाए. जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द गूगल क्लासरूम. तो जितने लोगों ने मेरी क्लास ज्वाइन की है, उनके पास एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन चला गया होगा कि इस टीचर ने ये नोटिफिकेशन या कुछ अपलोडेशन काम किया. सेकंड पार्ट इज कि आपके पास जो भी इंटीग्रेशन है, जो भी काम है, वो अपने गूगल कैलेंडर से इंटीग्रेशन करते हैं. अभी हम बताएंगे कि गूगल क्लासरूम में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और सारा अपकमिंग सेक्शन आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा. राइट नाउ मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैंने यहाँ गूगल कैलेंडर के संग अपग्रेड किया हो. तो हियर इज नो वर्क ड्यू सून करके एक ऑप्शन आ रहा है. If
फाइन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड, मैं दोबारा से करके देखता हूँ कि यहाँ अगर आप लेफ्ट टॉप पर जाते हैं तो सेकंड ऑप्शन इज द गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर को जब आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास आ गया। तो कोई भी असाइनमेंट, कोई भी एक्टिविटी को आप इसके साथ इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। तो इट विल वर्क फॉर यू एज अ रिमाइंडर। तो वो आपके लिए काम रिमाइंडर के तौर पर काम कर सकता है और ये आपकी मेन वॉल पर रिफ्लेक्ट होगा। सेकंड पार्ट अगर हम बात करें तो इस तरह से तो आप इस क्लासरूम में ये पोस्ट आ रहे हैं और जो पार्टिसिपेंट आप लोगों ने पोस्ट किए वो इस तरह ओपन पोस्ट आ रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट क्लासरूम में कोई भी ओपन पोस्ट कर सकता है, ये शो हो रहा है। आप उस पोस्ट के अगेंस्ट रिप्लाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि क्लासरूम में कोई बच्चा अननेसेसरी कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, इसी तरह के चीजें पुट अप कर रहा है, तो आप उसको म्यूट भी कर सकते हैं। ये म्यूट ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये चीजें हम गूगल क्लासरूम पर कर सकते हैं। ये तो बात रही स्ट्रीमिंग हम कैसे करते हैं, स्ट्रीम पोर्शन को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। पोर्शन है क्लास वर्क। In the classwork, in the classwork, you can provide any kind of task with your students. We have a different option in create part. If you click on create, you will find assignment, questions, material, reuse, post and the topic. सिचुएशन के लिए जब इवैल्यूएशन पैटर्न में हम जाते हैं तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि टीचिंग लर्निंग के साथ साथ बच्चे का एक प्रॉपर असेसमेंट करें कि बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, हम ये भी जानने का प्रयास। जब हम क्रिएट में जाते हैं देन वी विल फाइंड these option. The first thing, assignment. You can provide any kind of assignment to your student. मान लीजिए हमने कहा कि बच्चों को एक छोटा सा क्विज दे रहे हैं। क्विज इंस्ट्रक्शन जो भी आपको लिखना है, जो इंस्ट्रक्शन आपके अकॉर्डिंग आप बच्चों को क्लासरूम में दे रहे हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ये वट एवर यू वांट टू राइट, बट इट इज अ ऑप्शनल, इट इज नॉट ए मैंडेटरी, इट इज अ ऑप्शनल पार्ट। और उसके बाद आपके पास कई ऑप्शन यहाँ अवेलेबल। इफ यू हैव फाइंड अगेन वी विल हैव द सेम ऑप्शन जो हमारे पास पोस्टिंग के टाइम थे। अगर आपके पास कोई क्विज पहले से बना हुआ है, आपके ड्राइव में अवेलेबल है, आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं अपनी ड्राइव को। ये अपनी ड्राइव को लिंक कर सकते हैं, वो क्विज ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहीं और आपने बना रखा है, उसका लिंक देना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर फाइल है, कोई भी चीजें अपलोड कर सकते हैं। आप यूट्यूब दिखा के, कोई यूट्यूब पर वीडियो दिखा के कोई क्वेश्चंस पुट अप करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं कि मान लीजिए आपने बच्चों को कोई यूट्यूब वीडियो दे दिया और कहा कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग रिलेटेड टू द वीडियो ओनली, तो आप वो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज if you want to provide any kind, then you can directly create your assignment here. The beauty of this software is, डॉक्टर अमित, yes sir, सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ऐड कर रहे हो आप, ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा देन? ये जो ऐड कर रहे हैं, हाँ, ये क्लासरूम वर्क का पार्ट है और हर ये हमारे वॉल पर जब हम ये असाइन कर देंगे, लिंक भी वहीं आ जाएगा व्हाटएवर। यस, इंडिविजुअल बच्चे को एक इंटीमेशन जाएगा और ये जो लेटेस्ट असाइनमेंट है वो हमारी मेन वॉल पर, स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये रिफ्लेक्ट पर कैसे होगा। हमने यहाँ ऐड किया, ऐड के बाद आपके पास ये ऑप्शन दोबारा आ, मैं जो कह रहा था कि ये ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज कि ऑल द गूगल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंटीग्रेटेड विद गूगल ड्राइव, विद दिस गूगल क्लासरूम। डॉक्स आ गया, स्लाइड आ गया, गूगल शीट्स अवेलेबल है, गूगल ड्राइंग और गूगल फॉर्म। अगर आपको लगता है कि आप कोई कोलैबोरेटिव लर्निंग पर काम देना चाहते हैं, बच्चों को चाहते हैं कि एक कोलैबोरेशन के तौर पर काम करें, यू कैन पुट अ गूगल डॉक्स आल्सो।
सो दैट कि पूरी क्लास कंबाइंडली एक गूगल डॉक्स पर काम कर सकते हैं। आपको लगता नहीं यार, मैं एक क्विज देता हूँ, तो यू कैन क्लिक ऑन गूगल फॉर्म। इन गूगल फॉर्म इट इज एवेल्यूएशन एप्लीकेशन, जहां पर आप किसी भी तरह का डेटा जनरेट कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, और उसको हम किसी भी तरह डेटा का रीयूज कर सकते हैं। आजकल आप जितने भी ऑनलाइन एफडीपी प्रोग्राम चल रहे हैं, वेबिनार चल रहे हैं, nowadays everybody is asking your personal detail or the registration detail with the Google form only, because it's easy to share, is easy to circulate, और यूजर इजीली भर देता है। जब हमने एक नई शीट या क्रिएट की, तो नई शीट क्रिएट करने के साथ आप ये फॉर्म देख रहे होंगे कि एक गूगल फॉर्म, नया फॉर्म ऑटोमेटिकली लिंक हो गया। सेकंड पोर्शन, इस सेशन के सेकंड पोर्शन में मैं स्पेशली इस एप्लीकेशन थोड़ी सी चर्चा जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि इवोल्यूशन की बात हम करते हैं ऑनलाइन, तो सिंपल फॉर्म है, बहुत अच्छा ये गूगल फॉर्म अवेलेबल है, इस पर हम किसी भी तरह का क्विज जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने कहा क्विज 1, कोई डिस्क्रिप्शन देना है, इट इज रिलेटेड टू पेडागोगी ऑफ साइंस, और आप किसी भी तरह के क्वेश्चन यहाँ डेवलप कर सकते हैं। हमने लिखा, एक सिंपल से क्वेश्चन लिख देता, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ साइंस। हमने ये स्टूडेंट से पूछा, तो हम इस पे मल्टीपल चॉइस देते हैं, या यहां पर हमने राइट क्लिक किया तो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। हमने कहा नहीं, बच्चों के सामने तो एक शॉर्ट आंसर पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों का व्यू क्या है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ साइंस के। तो हमने इसे फर्स्ट पे शॉर्ट आंसर पे क्लिक किया और इसको छोड़ दिया। अब ये आपके ऊपर है कि इसको आप मैंडेटरी बनाएं या ना बनाएं। अगर आपको मैंडेटरी बनाना है तो रिक्वायर्ड पोर्शन पर क्लिक करिए एंड इट इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट। You can write the any kind of things on the concept of science. Okay. तो ये डेमो के लिए एक क्विज, एक क्वेश्चन बेस्ड क्विज मैंने बना दिया। आपको इसको ये क्लाउड पे सेव ही है, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। ये हो गया, और हमने बच्चों के साथ कोई भी इंस्ट्रक्शन लेके क्लासरूम में ये जनरेट कर दिया। अब जब आप राइट हैंड पर आप देखेंगे तो ये फिर आपसे पूछता है कि दिस क्विज इज फॉर हुम। आपको देख रहे हैं कि आप पर लिखा है एफडीपी आईपी यूनिवर्सिटी है, और अगर कोई सिंगल क्विज है, मान लीजिए हमने कोविड-19 पर एक जनरल अवेयरनेस बेस्ड क्विज बनाया है, तो आप एक सिंपल क्विज को पूरी क्लास के साथ एक बार में सर्कुलेट कर सकते हैं, एक बार में पोस्ट कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। दूसरी बात यहाँ ये है, फिर वही क्वेश्चन पूछता है कि ये इट इज कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट या इट इज स्पेसिफिक टू सम स्टूडेंट ओनली, ये आपके ऊपर है। आफ्टर दैट इट विल आस्क अबाउट दी पॉइंट्स क्या है, आपको नंबरों से इसे जोड़ना है या अनग्रेडेड करना। जब हम क्लासरूम सिचुएशन में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स में आपको इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। मैंने इसको फॉर एग्जांपल लिखा 10 पॉइंट्स में दे दिया इसको। नेक्स्ट थिंग यहां जो रिफ्लेक्ट हो रही है हमें, वो हो रही है ड्यू डेट। ये बारे में पूछते हैं, या तो आप फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं स्टूडेंट को कि वो कितने भी समय में कभी भी अपलोड कर रहा है, पर क्लासरूम सिचुएशन में ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम एक लिमिट बना के चलें। चाहे आप बच्चों को 2 दिन एक्स्ट्रा दे दीजिए, बट इट इज शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली। Some due date should be available. Some due date should be assigned to the student. 2 दिन देना है, 3 दिन देना है, so that कि एक लिमिट के बाद बच्चा उसका आंसर नहीं कर सकता। It is up to you कि आप ये फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को दें कि वो किस लिमिट के तहत ये काम करेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल कैलेंडर ओपन होता है। The Google Calendar will also ask about your due date. If you say that today I am going to share this quiz with the student, so 18 will be fine,
then you can put the 18 and time it is available to कि आप पूरा 18 देना चाहते हैं या कोई टाइम लिमिट देना चाहते हैं, इट अप टू। मैंने यहाँ पर 11:59 PM लिख दिया। इट मीन्स कि मे 18 का पूरा दिन उसके पास। आफ्टर दैट यू कैन प्रोवाइड एनी टॉपिक, यू कैन क्रिएट एनी टॉपिक। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक से रिलेटेड है, कोई टॉपिक से लिख सकते हैं आप, अगेन यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपको एक काम करना है। अभी एक और बेहतर फीचर जोड़ा है यहाँ, मैं सोचता हूँ साथ ही साथ करना ठीक है। ये गूगल ने अभी जो फीचर जोड़ा है, that is known as the originality report. It is the latest feature which is launched in April, I think January 2021. If you click on this, then the learner जो भी अपलोड करेगा, the report will come under the originality report. What is the meaning of the originality report? Originality report means it allows the educator and the student to see the part and the section of the submitted work which contain the exact or the similar wording to that of another resources. For it highlights the sources, material and the missing citation to assist the student in improving their writings. Teacher can also view the originality report, which allowing them to verify the academic integrity of the student's submitted work. So it is essential for us. Now you can click on this or आपके ऊपर है, whatever you want to do. After that, you can assign this quiz. Again, we have few options. आपको तुरंत असाइन करना है, आपको शेड्यूल करना है, या आपको ड्राफ्ट करना है। मान लीजिए मैं अभी तुरंत असाइन करूंगा, ये मैंने क्विज असाइन कर दिया। जो भी आप क्लासरूम में बच्चों को देंगे, वॉट एवर यू विल एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट अंडर द क्लास वर्क, वो यहाँ सीक्वेंस में अवेलेबल होता जाएगा। तो यू नीड नॉट टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड कि मैंने कल कौन सी डेट को क्या काम दिया। क्विज आज मैंने दिया, ड्यू डेट है, ये एक सीक्वेंस में यहाँ अवेलेबल हो जाए। जो अभी एक सवाल आया था कि वो क्विज रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, उस सवाल का जवाब ये है कि क्विज एक तो रिफ्लेक्ट आपके पास, अगर आप अपना देख रहे होंगे तो ईमेल में ऑटोमेटिकली एक पोस्ट चली गई होगी कि सो एंड सो क्लासरूम में एक टीचर ने न्यू असाइनमेंट क्विज अपलोड किया। अनदर पार्ट इज कि automatically reflected on your stream portion also. You are able to see this part. आप यहां देख रहे होंगे कि अमित गौतम posted a new assignment quiz. ये आपके यहां आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, तो student can directly open also. So both the option is open for the student. तो ये यहाँ पर अवेलेबल हमारे पास अवेलेबल है। Another part is, जो क्लास वर्क में हम बात कर रहे थे, क्रिएट में जाकर हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, असाइनमेंट है, क्विज असाइनमेंट है, ये सब ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और इनमें किसी में भी आप दोबारा से बेसिकली असाइनमेंट में आप कोई भी काम कर सकते हैं, और क्विज असाइनमेंट में पर्टिकुलर क्विज से रिलेटेड, पर ऐसी नहीं है कि आप असाइनमेंट में क्विज नहीं दे सकते। अप टू यू कि आप किस में क्या काम देना चाहिए। थर्ड है, आपका कोई क्वेश्चन पुटअप करना है बच्चों से, तो वो भी आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, इमीडिएटली बच्चे उसका आंसर दे सकते हैं। मैं दोबारा से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। आप इसमें काम कर रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन बच्चों के पास दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर या मल्टीपल चॉइस, दिस विल बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। लिमिटेशन टाइम अवेलेबल, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ ये है
कि स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर। अगर बच्चा रिप्लाई कर रहा है तो इट इज कॉमन टू ऑल, और आफ्टर दैट स्टूडेंट कैन एडिट दिस पार्ट, और यहाँ पर जाके आप आस्क में जाके काम कर सकते। आपने कहा नहीं मुझे पूछना, तो आप उस पर कर दी आस्क करिए, तो ये ऑटोमेटिकली फिर रिफ्लेक्ट वहीं होने लगेगा स्ट्रीम सेक्शंस। देखिए फर्स्ट ये आ गया, अमित गौतम पोस्टेड अ न्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। तो ये इस तरह की जो भी आप क्लास में काम कर रहे हैं बच्चों के साथ शेयर हो रहा है। इसी तरह आप कोई भी क्लास मटेरियल, ये तो हो गई इवैल्यूएशन से रिलेटेड बात कि गूगल क्लासरूम में इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। इसके बाद एक बच्चों के साथ कोई नोट्स साझा करना है, कोई नोट्स देने हैं, तो वो आप क्लास वर्क में से भी जाके बच्चों को असाइन कर सकते हैं। वी हैव टू ऑप्शन, या तो आप डायरेक्टली वहीं से यूटिलाइज कर लीजिए स्ट्रीम में, या फिर आप क्रिएट में जाकर मटेरियल में जाके किसी भी तरह का नोट्स मटेरियल शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज रीयूज मटेरियल। मैंने पहले भी कहा कि जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट दी सॉफ्टवेयर, इट डजंट मीन कि हम हर बार उसे डाउनलोड करें, सेव करें, फिर सर्कुलेट करें। द पार्ट इज कि एक मटेरियल को हम कितनी बार रीयूज कर सकते हैं, बच्चों के संग शेयर कर सकते हैं, और बार बार हमें डाउनलोडिंग अपलोडिंग की जरूरत ना पड़े। रीयूज मटेरियल वो मटेरियल होता है जो आप पहले से प्रीवियस क्लासेस में या सेम क्लासेस में आप ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारा मटेरियल क्लासेस आपके पास आ जाएंगे। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, जो भी मेरी कोई एक क्लास है, मान लीजिए आप एफडीपी की क्लास की बात, जब एफडीपी की क्लास में मैंने जो पोस्ट किया, मैंने अभी यहाँ क्यूजी पूछे हैं, और इसके बाद अगर आप मैंने कोई यहाँ आपके साथ टेक्स्ट मटेरियल, इमेज मटेरियल, वीडियो शो किया होता, तो वो इसी पोस्ट के अंतर्गत आ जाते, और यू कैन कॉपी दिस मटेरियल। if you click on the particular topic, आपके पास राइट हैंड में एक ऑप्शन known as the reuse. You can reuse this material. Okay? तो आप किसी भी असाइनमेंट से पहले वो मटेरियल को रीयूज पोर्शन में जाके बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो भी टॉपिक डिस्कशन के लिए दे सकते हैं, जो बच्चों के साथ कोई टॉपिक डिस्कशन करना हो, यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉपिक इन योर गूगल क्लासरूम। नेक्स्ट पोर्शन मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरह से किसी भी लर्नर को क्लासरूम में जोड़ते हैं, स्टूडेंट को जोड़ते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं। अब इसके अलावा बात जो सबसे एसेंशियल बात आती है, पहले इसकी बेसिक सेटिंग्स पर मैं बात करता हूँ। और पहले हम इसकी चलिए ग्रेड्स, हाँ हेलो। Yes, I've posted one question in the stream. Can you please see it in my comments? Name Nisha Saini. Nisha Saini, yes. Actually, yesterday I was trying to create it, but it was asking me to create it using personal account, and I cannot use Google Meet, because it wants some official or business domain. So can you please explain the difference between the two? Just wait. Okay. बेसिकली जो गूगल मीट है, गूगल मीट को भी पहले तक हम हैंगआउट के नाम से भी जानते थे, पर हैंगआउट वाज अ फ्री फॉर अ पर्टिकुलर यूजर, 10 to 15 यूजर हम उसमें ऐड कर सकते थे। गूगल मीट इज just a professional version of that particular, or when you have any kind of institutional account, it is free for you. If you are using the Google Meet through the personal account, then you have to pay for it. Okay? It means कि आपकी कोई इंस्टीट्यूट आपको अकाउंट प्रोवाइड कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, using this time my account Amit G 50@di.ac.in. It is my institution.
तो फॉर द इंस्टीट्यूशन अकाउंट इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑटोमेटिकली आपका इंटीग्रेटेड पार्ट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट के लिए थोड़ी सी लिमिटेशंस यहाँ पर है। अब हम इसकी बात करते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा, प्रदीप जी ने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन सब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, इट इज ओपन टू ऑल बिकॉज क्लासरूम में कुछ भी चीजें हिडन नहीं है। एक ओपन डिस्कशन, वी कैन ओपन डिस्कशन थ्रू दिस गूगल क्लासरूम आल्सो। अब जब हम 3 पोर्शन की हम बात कर चुके हैं आपके साथ, स्ट्रीम, क्लासरूम, पीपल, फोर्थ पोर्शन इज ग्रेड। जब क्लासरूम सिचुएशन की बात करते हैं तो ये जरूरी है हमारे लिए कि बच्चों की ग्रेडिंग कैसे करें, क्योंकि अभी मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। अगर आप क्विज 1-2 क्विज अटेम्प्ट करेंगे दैट विल बी गुड फॉर मी। एनीथिंग यू कैन राइट सो दैट आई कैन शो यू द लाइव एग्जाम्पल। अभी मैंने पूछा आपसे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ साइंस, या एक क्विज आपको दिया है। एनीथिंग यू वांट टू राइट, एनीथिंग यू वांट टू सबमिट, प्लीज। So that I can provide you a live example. We can explore the grades. अभी किसी के रेस्पॉन्सेस नहीं है। Give the permission. Hello. हेलो, Hello, sir. Please give the permission. It is denied. now you can try. ओके, आप करिए, तब तक मेरे पास एक और क्लास में उसका असाइनमेंट आपको दिखा देता हूँ। बिकॉज थोड़ा सा हमारा टाइम सेव होगा, टाइम की लिमिटेशंस है हमारे साथ। देखिए, जो मैं बात कर रहा था, एक और मेरे पास क्लास है, इनको मैंने पहले कुछ असाइनमेंट दे रखे हैं। ओके, जब असाइनमेंट तो हमारे पास शीट्स अवेलेबल। जस्ट अ मिनट, उससे पहले एक चीज और आपको बताना पड़ेगा। देखिए, एक चीज जो मैं शो करना चाहता था, अगर आप असाइनमेंट वहां जमा करते तो आपके पास डायरेक्टली एक चीज रिफ्लेक्ट होती। मैंने इनको एक क्वेश्चन दिया, इनको थर्ड वाइवा की एक फाइल पोस्ट करनी थी। वो मेरे स्ट्रीम में सेक्शन में क्लियर हुआ और इनमें से इन स्टूडेंट ने अपनी फाइल यहाँ सबमिट की, मतलब अपना असाइनमेंट एक जमा किया। इन स्टूडेंट ने जो असाइनमेंट जमा किया, मैं इन असाइनमेंट को यहीं पर इवेल्युएट कर, मान लीजिए कोई फाइल मैंने स्टूडेंट की खोली, और ये फाइल स्टूडेंट की मेरे पास अवेलेबल है। कोई भी एक सब्जेक्ट उसकी फाइल अवेलेबल है, इस तरह से हमारे पास अवेलेबल। जो भी आप असाइनमेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, वो यहाँ सबमिट करेंगे, आपको एक फॉर्म में दिखाई। जितने टर्न इट आपके संग हो रहे हैं, आप डायरेक्टली इस विंडो को खोलकर यहाँ से उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। यहाँ कितने स्टूडेंट ने मिसिंग है, इट मीन्स कि अभी तक उन्होंने फाइल जमा नहीं की है। बाकी टर्न इट, कुछ बच्चों ने टर्न इट लेट की, तो यहाँ जस्ट मेंशनिंग हियर डन लेट करके एक ऑप्शन आ रहा है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर ओवरऑल रिकॉर्ड देख सकते हैं। यू कैन डाउनलोड एनी काइंड ऑफ फाइल, हियर डाउनलोड ऑप्शन। आपको लगता है कि मैं वहां नहीं, मैं बाद में देखूंगा, आराम से बात कर सकता हूँ, तो यू कैन डाउनलोड दिस फाइल ऑल्सो। तो यहाँ आप ये देख रहे हो, नीचे फाइल डाउनलोड, और डायरेक्टली यू कैन रीड दिस फाइल, यू कैन इवेलुएट दिस फाइल, और यहाँ पर ग्रेड वाले ऑप्शन में आप इस फाइल के लिए मार्क्स दे सकते। इफ यू वांट कि यहाँ पर कुछ कमी है, देन यू कैन पुट द प्राइवेट। रिमेंबर वन थिंग, दिस कमेंट विल बी प्राइवेट ओनली, क्योंकि जब हम इवेल्युएशन, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, इट इज नॉट फॉर द होल द क्लासेस।
It is the personal assignment of a student and the student needs a personal comment for the improvement. तो यहाँ पर्सनल एक है, ये केवल उसी बच्चे को दिखाई देगा जिसको आप कोई भी सजेशन दे रहे हैं, उसके अलावा ये किसी स्टूडेंट को नहीं दे रहे। मैंने कहा कि बच्चे रीसबमिट कर रहे हैं, रीसबमिट द फाइल इमीडिएटली, इस तरह मैंने लिखा, मैंने पोस्ट कर दिया, अनग्रेड करते हुए मैं उसको पोस्ट कर रहा हूँ, तो ये कमेंट बच्चे के पास चला जाएगा। अदरवाइज आपको लगता है कि जो आप इवेल्युएशन कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट बच्चे ने कॉपी किया है, कुछ मिस्टेक है, तो यू कैन हाईलाइट दिस पार्ट। अगर आप ऐड में जाएंगे, यहाँ यू कैन सी चेक दिस पार्ट, ऐड अ कमेंट, और यू कैन हाईलाइट पर्टिकुलर पोर्शन। आर यू एबल टू? हेलो, Yes, sir. तो आप ये पार्ट जो हाईलाइट कर रहे हैं, आपको लगता है ये रिपीटेशन हो रहा है, ये कहीं से ठीक नहीं है, तो आप इस पे एक रिमार्क दे सकते हैं। कोई भी रिमार्क आपको लगता है ये दिस पार्ट इज copied or something else, you can post this comment, and this comment is again private comment. तो जब भी बच्चा अपना असाइनमेंट रीओपन करेगा इवैल्यूएशन होने के बाद, उसको जगह जगह ये कमेंट दिख जाएगा। ओके, बच्चे से आपने कोई क्लैरिफिकेशन मांगा है और आपको लगता है कि ये रिजॉल्व हो गया, तो यू कैन रिजॉल्व दिस पार्ट। ओके, तो वो कमेंट वहां से चला जाएगा। आपको सारी सिचुएशन ठीक लगती है तो यू कैन प्रोवाइड द मार्क्स फॉर दिस फाइल ऑल्सो। आपने इस फाइल को पढ़ा, आपको लगता है इसका जो क्राइटेरिया मैंने रखा वो 65 मार्क्स है, आपको लगता है कि ये अप टू मार्क है, इट इज अ गुड वन, तो यू कैन प्रोवाइड दी एनी काइंड मार्क। दिस इज ओनली फॉर द एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने अभी फाइल रीड नहीं की है, तो ये 40 मार्क्स आप देके छोड़ सकते हैं। एंड यू कैन सी हियर, इस बच्चे के नाम के साथ ही उसके मार्क्स यहाँ भी रिफ्लेक्ट होने लग गए ड्राफ्ट में। ओके, ड्राफ्ट में आप इसके मार्क्स देख सकते हैं, और इसी तरह हर इंडिविजुअल लर्नर के लिए आप काम कर सकते हैं। जो प्रोसेस ने अडॉप्ट की कि वहां दोबारा से असाइनमेंट में जाके यू नीड नॉट टू ओपन एनी सिंगल फाइल अगेन एंड अगेन, आप बस यहां से मूव करिए और हर बच्चे की फाइल सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस खुलती जाएगी। यहां पढ़िए, अपनी स्क्रीन को पढ़िए और राइट हैंड में बच्चे को मार्क्स अलॉट कर, जो मार्क्स अलॉट कर रहे हैं ये मार्क्स बच्चे के अभी अकाउंट में ड्राफ्ट होते जा रहे हैं, मतलब आपने अभी उसको पब्लिकली नहीं किया। आपको लगता है कि नहीं, ये पूरी क्लास के मार्क्स असाइन करने के बाद मैं उसको रिटर्न करूं, दिस फीचर इज नोन एज द रिटर्निंग ऑफ द मार्क्स। तो आप या तो कंबाइंड मार्क्स को रिटर्न करेंगे, आई विल शो यू दिस, बट बिफोर दिस पहले मैं ये दिखाऊं रिटर्न कैसे कर। आपने कहा कि इसको मैंने 40 मार्क्स दिए, यू कैन रिटर्न दिस। अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये मार्क्स बच्चे को रिटर्न दिस सबमिशन, ये वहां शो हो जाएंगे। स्टूडेंट विल बी नोटिफाई एंड कैन चेक एनी ग्रेड लेफ्ट, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। इट इज फॉर द सिंगल स्टूडेंट, और इफ यू वांट टू रिटर्न द मल्टीपल सबमिशन यू कैन क्लिक ऑन दिस पार्ट, यू विल फाइंड दिस रिटर्न मल्टीपल सबमिशन शीट, और आप इस पर हुए मल्टीपल पोर्शन को असाइन कर सकते हैं। मैंने अभी आपके सामने 2 की ग्रेड की है, 2 को मार्क्स दिए, तो आप इनको डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। ओके, जब आप ये पोर्शन कर लेंगे तो उस पोर्शन के बाद अब हमें जाना पड़ेगा ग्रेडिंग पोर्शन। जस्ट मैं इसी क्लास के साथ आपके लिए साथ हूं, सो दैट के जब इस क्लास के साथ हम गए, अभी मैंने जो बच्चों के साथ मार्क्स शेयर किए वो आप यहां देख रहे होंगे कि ये मार्क्स उन बच्चों के सामने एक के फॉर्म में कन्वर्ट हो। जितने भी कंपोनेंट आप बच्चों को, वो कंपोनेंट यहाँ फॉर्म में शो होते रहे। अभी मेरे पास 2 ही कंपोनेंट हैं, क्योंकि ये एक क्लास डेमोन्स्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट की गई थी, तो यहाँ 2 कंपोनेंट है। जितने मल्टीपल
कंपोनेंट होंगे उनका एवरेज यहाँ निकल के आ जाएगा। तो आप इनको यहाँ से भी रिटर्न करिए या सारे कंपोनेंट के मार्क्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा इन मार्क्स को आप एक ग्रेडिंग फॉर्म में आपको लगता है कि ये फाइल है और सारा जितना इवैल्यूएशन अब तक बच्चों का हो चुका है, उनको आप यहाँ जो आप एक सिंबल देख रहे हैं सेटिंग्स का, इसमें सेटिंग्स में जाके डाउनलोड द ग्रेड्स एज अ CSV फाइल, डाउनलोड दीज ग्रेड्स एज अ CSV फाइल। ऑल ग्रेड्स जितना अब तक का ग्रेडिंग आपने कर रखी है वो सारा ग्रेड एक सिंगल कमांड पर इट विल बी डाउनलोड इन योर डाउनलोड सेक्शन, और या आप कॉपी ऑल द ग्रेड टू द गूगल शीट। फर्स्टली वी check this part, how we can copy this part in Google Sheet. Now it is opening. आप ये देखें, जो असाइनमेंट मैंने वहां किया वो आपका डायरेक्टली गूगल शीट में ओपन हुआ और गूगल शीट में बच्चे का नाम ये सब आ गया और जो भी स्कोर आपने दिए वो स्कोर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा, क्योंकि अभी तक मैंने असाइन किए। अगर जो असाइन करके मैं जितना भी बच्चों को रिटर्न कर पब्लिश करूंगा वो मार्क्स ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे। और डायरेक्टली यू कैन डाउनलोड दी एनी काइंड ऑफ एक्सेल शीट ऑल्सो। ये एक्सेल शीट एक जनरेट हो गई, एक्सेल शीट आप ले सकते हैं और एक्सेल शीट को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी ग्रेडिंग कर सकते हैं, इट इज अप टू। ये ग्रेडिंग शीट इस तरह सो दैट कि आपको किसी भी डेटा को इंडिविजुअली कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल क्लिक पर वो डेटा आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये गूगल क्लास कुछ फीचर्स हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। और द बेस्ट बेनिफिट इज दिस एप्लीकेशन कीप ऑल द रिसोर्सेज इन वन प्लेसेस। आफ्टर दैट I want to share one thing also. You can also create the grades also. You can find if you want to if you want to conduct the overall grading calculation. So it should be in you don't want to overall grading. आप अगर टोटल पॉइंट्स में चाहते हैं, वेटेज बाय कैटेगरी चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास, आप किस तरह से ग्रेड एक्सेल शीट कन्वर्ट करना चाहिए। आप चाहते हैं कि बच्चों को सारा रेल्ट ओवरऑल सीन हो, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं शो ओवरऑल ग्रेड्स पर, और या यू कैन प्रोवाइड दी कैटेगरी ऑल्सो, किस ग्रेड के लिए क्या कैटेगरी है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी बात आप कर इनको अवेलेबल है। अच्छा, एक सेटिंग्स की और बात करता हूँ कि जब आप गूगल क्लासरूम की बात करते हैं तो राइट हैंड में जो ऑप्शन है, तो फर्स्ट इज द क्लासरूम, सेकंड इज कैलेंडर, थर्ड इज टू डू। आफ्टर आपकी क्लासेस हैं उसके बाद एक सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग ऑप्शन में आप कभी कभार ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप इन नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। रिसीव ईमेल, आपको लगता है कि नहीं मैं इतने सारे ईमेल को हैंडल नहीं कर पाऊँ, तो आपको रिसीव ईमेल ऑफ कर सकते हैं, और रेगुलरली आपको क्लासरूम चेक करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है को टीचर्स के पास और आपके पास। इस सेक्शन में जाके आप काम कर सकते हैं। अब इस सेशन के लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं। कोई भी, मेरे पास एक एप्लीकेशन और है, मैं अभी उस पर बात आपके साथ करूंगा, पर उससे पहले गूगल क्लासरूम से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, पहले हम उसको ले लेते हैं और उसके बाद हम दूसरी एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, एक ये है कि
सेम फीचर यहाँ अवेलेबल है और फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल इन मोबाइल ऐप। एज अ टीचर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो कोई भी टाइम की सिचुएशंस की कोई लिमिट आपके पास, कोई भी फाउंडेशन या बाउंड्रीज नहीं है। तो एज अ टीचर अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन के भी थ्रू यू विल फाइंड ऑल द एप्लीकेशन विद यू। बशर्ते अगर आप कोई नोट्स दे रहे हैं तो वो एक प्री डिसाइड फाइल आपको पता हो कि कहाँ पर फाइल है, किस लोकेशन में, और या सारे नोट्स को आप अपनी ड्राइव में सेव कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, सो दैट कि आप कहीं भी हो, कभी भी हो, इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। Okay. Now we can take some questions. Yeah, hello, good evening, Dr. Amit Gautam. Can you hear me? I am Manju Gupta from Meerut College. Yeah, please, ma'am. Yeah, sir, I just opened my screen and this Google Classroom is showing only class code and it's not showing the icon of Google Meet. So is basically, I told this part to one of the participants of this workshop. Google Meet is basically freely available on institutional account only. It is that's why it is not reflecting on your wall also. Okay, I was just thinking it should be attached here. I have got the separate Google Meet. No, you have separate, but if you are using the any kind of institutional account, it will be integrated with your Google Classroom. Perfect. Thank you so much. Okay, most welcome. Yes, dear participants, questions are welcome to the resource person, please. Can be enrolled. डॉक्टर शेखर सुमन बोल रहा हूँ इग्नू से। Yes sir, please. मेरा क्वेश्चन था कि जब आपने बताया कि जो असाइनमेंट्स कोई सबमिट करता है तो उसकी आप ये पोर्शन चेक कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कि वेदर ही और शी हैज कॉपी। आवाज ब्रेक हो रही है सर, प्लीज। शेखर जी आपकी आवाज, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। You can type your question in chat box also, please. Hello, sir. Hello. Sir, am I audible? Yes, ma'am. Actually, sir, मेरा क्वेश्चन है कि जो हम लोगों का स्टूडेंट वाला जो विंडो है उसमें जो हम आंसर कर रहे हैं तो उसमें एक हम सभी हैं, तो क्या स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा कोई ऑप्शन है अपना आंसर देख सके? मैम प्लीज यू कैन आस्क अ क्वेश्चन वन बाय वन प्लीज। व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी से अनुरोध है कि वो अपना क्वेश्चन वो चैट बॉक्स में लिख के करें, कि आवाज बिल्कुल यहाँ ब्रेकअप में आ रही है जी। और कनक जी आप दोबारा पूछिए अपना क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने समझ लिया कि हम उनको कैसे ग्रेडिंग करेंगे, क्या आंसर कहाँ देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट शेखर सर अभी आपको लेते हैं, कनक मैम पूछ रही हैं, अभी आप आवाज आ रही है, अभी आपको मैं प्लीज ज्वाइन करता हूँ प्लीज। हाँ सर जो स्टूडेंट है जब वो अपने एंड से आंसर कर रहा है तो वहां पर मैं देख पा रही हूँ कि सर सभी के आंसर्स हम देख पा रहे हैं। तो क्या स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसी फैसिलिटी है में वही अपना आंसर देख सके और दूसरे स्टूडेंट्स को देख सके? आप क्वेश्चंस की बात उसमें क्विज में बात कर रहे हैं? हाँ सर, वो जो रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स जो रेस्पॉन्स भेज रहे हैं तो स्टूडेंट के जो आ रहा है वो अपने क्लासमेट के रेस्पॉन्स आ रहा है। बेसिकली सेटिंग है, सेटिंग्स है, पर यू कैन कंट्रोल दिस पार्ट, बट आपको ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए यू नीड नॉट टू कंट्रोल दिस पार्ट आल्सो। बेसिकली इफ यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ क्विज टू द स्टूडेंट, इट इज डिसाइडेड कि की क्या है आपके पास। तो फॉर द मैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप इवैल्यूएशन करेंगे तो इट विल कंट्रोल योर वर्कलोड आल्सो, कि बच्चा एक दूसरे से ऑटोमेटिकली मैच कर रहा है। वी आर इट इज जस्ट लाइक अ डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आप ओपन कर रहे हैं तो इट इज ट्रांसपेरेंट टू ऑल। ओके सर।
Anybody else? Hello. Good afternoon, sir. There is one question. Sir, if you can please just demonstrate again how to copy the marks in the Google Sheet. How to copy the marks in Google Sheet? You just gave the grades and then you framed them in the Google Sheet, just copied them. So how to do that? We just Okay. Yes. जब हम इस व्यू असाइनमेंट में जाकर देखेंगे तो यू विल फाइंड ऑल द रेस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Top you will find this symbol. Right top you will find this symbol. So you can copy all the grade to the Google Sheet. If you click on this part, the separate Google Sheet will be open, and all the grades will be copied to in particular Google Sheet on. आप देखिए इस तरह आपके लिए एक सेपरेट फाइल आ गई. तो आप इसको कभी भी गूगल ड्राइव में अपने शेयर कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में काम कर सकते हैं. अप टू यू. इसके अलावा यू कैन डाउनलोड दिस सेपरेट एक्सेल शीट आल्सो. इफ यू वांट टू डाउनलोड ऑल ग्रेड्स एज अ CSV, you can download this part from here, or you can download a particular single grades, only particular single grade. तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं कि किसी भी तरह से आप अपने डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं. Right, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, ma'am. Most welcome. 2-3 मिनट और बचे हैं. Anybody, if having any doubts, I'm ready to answer all the queries. Sir. Hello. Yes, Hello, please. Yes, please. I'm Snigdha from Indraprasth University itself. I just want to know that when we are creating a quiz and they are giving a multiple choice question. So like a few days before I tried it, so for each question I had to type the questions and the multiple choices again. So is there any possibility like we can have a Word file already typed and we can link it with the... Yes, ma'am. We have both the option, but I will show you how we can create this one. Hello, sir. Hello. Sir, can I ask? Sir, if there is any Google Classroom option in your sir, can you wait for sir? I request you. Can you wait for two minutes? मैं अभी दूसरे क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ. 1 मिनट. I will take your question. Okay. मैडम, आप ये क्वेश्चन पूछा कि how we can upload this file. When you comes under the create category, you will find the assignment. आपके पास यहाँ ऑप्शन है. मैंने आपको बताया था कि जब आप ऐड ऑप्शन में जाते हैं, आर यू एबल टू? ओके, एक सेकेंड. आई विल शेयर माई स्क्रीन. Now you are able to see my screen? Yes, sir. I will repeat step again. If you find the create section, you will find the assignment section, and अगर हम add portion में जाते हैं, find the option. In the file attachment, आपके पास जो पहले फाइल अवेलेबल है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं. कोई भी डॉक्स फाइल अवेलेबल है आपके पास, उस फाइल्स को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं. आप अपलोड पोर्शन में जाइए, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस करिए, तो वो यहाँ से आप इजीली फाइल को अपलोड कर सकते हैं. इस फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं. पर मैं सजेस्ट आपसे ये करूंगा कि आप क्रिएट में जाकर एक गूगल फॉर्म में चीजों को क्रिएट करिए. द रीजन इज कि आप जो भी क्वेश्चन बच्चों वो सेल्फ ऑटोमेटिकली इवेल्युएट होता जाएगा. आप अगर की उसमें डाल देंगे, की प्रोवाइड कर देंगे मल्टीपल ऑप्शंस में, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसेटेड डेटा. तो
तो आपको जो असाइनमेंट दे रहे हैं आपको मैनुअली वो असाइनमेंट चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर कि आप इस तरह की जो गूगल क्लासरूम ले रहे हैं उस पर ड्राइव बेस्ड कोई भी गूगल डॉक्स पर काम करिए, गूगल फॉर्म्स पर काम करिए, गूगल शीट पर काम करिए, सो दैट जो वी कैन सेव आवर टाइम इन एवेल्युएशन प्रोसेस। आप कोई भी फॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दोबारा से एवेल्युएट होता जाए। ठीक है मैम? राइट सर, थैंक यू। नेक्स्ट सर, लास्ट में क्वेश्चन था। Yes, sir. Yeah, please. Hello, sir. Sir, we get the option of Google Hangout in our mail ID. But if there is any option itself inside our Gmail account for Google Classroom, yeah, we have to always do it in separate login. Basically, from the single login, you any kind of Google applications. But if we talk about the Google Classroom, then Google Hangout is limited with its user only. That's why the Google is giving the access of Google Meet. Number of candidates we can increase through the Google Meet on. Okay, so that is the best software which we can integrate it with our Google Classroom also. Hello. Hello. Sir, I am Vinita from IP University. Yeah, Vinita ji, please. सर, अगर किसी स्टूडेंट को बीच में क्लास छोड़नी है तो क्या उसे टीचर से परमिशन लेनी पड़ेगी? नो मैम, ऑनलाइन की फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि जुड़ने के लिए टीचर से कोड चाहिए, ड्रॉप वो कभी भी कर सकता है। या आपको लगता है कि जब आपने क्लासरूम ऐड की, बच्चा क्लासरूम छोड़ गया, ड्रॉप आउट हो गया, तो आप उसको कभी भी उस क्लास से एग्जिट कर सकते हैं। इट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। बट जब थ्रू आउट प्रॉपर चैनल में चलते हैं तो ये कमी होता है कि क्लासरूम बच्चा बीच में छोड़े, क्योंकि असाइनमेंट उसको वहीं मिलता है। तो ये दोनों एंड पर फ्लेक्सिबिलिटी है, एक स्टूडेंट भी क्लास छोड़ सकता है और टीचर भी एग्जिट कर सकता है किसी को। Anybody else who have any kind of query? Sir. Hello, sir. Yes, please. I am Pradeep Chandran. Pradeep ji, please. I am from Kerala. That my question is that you have posted a quiz in your Google Classroom, but when I try to open it, they are asking for access. So how it can be done, sir? Please. Okay, basically it is also it is asking the access just because it was available in my Google form. So उस समय I didn't put any kind of access to you. Now you will open this part and you will find there is no access is demanded from the Google form also. So access is required. When we are working on Google Sheets, Google form, the access setting is required. So it is mandatory for us ki whom we want to give the access. Open to all, no access will be required. Okay, thank you, sir. Dr. Amit, hello. 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 Yes. Thank you, Dr. Amit. I think it's time for the tea. Yes. So I think you have answered all the queries of our participants, and now it's time for the break. And now again we will meet at 4:30 for the next session. And it was really a very enriching session, very informative session. All the participants are they are praising in the chat box. So thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Thank you.